الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے کسی بھی گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور ہمارے نامدار، مدینے کے تاجدار، مالک و مختار، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے: اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ بے شک انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور ویسے تو آدمی کتنا بھی کہے کہ میں بہت مضبوط ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق ہی کمزوری کے طور پر ہوئی ہے. ٹھنڈی کا سیزن چل رہا ہے، اس وقت اگر کہیں دھوپ دکھتی ہے اور آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے تو اپنا وقت وہ جو ہے دھوپ میں بتانا چاہتا ہے، صرف کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ جب ٹھنڈی لگتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو دھوپ میں لے جاتا ہے، آگ کے پاس لے جاتا ہے. گویا وہ ٹھنڈی برداشت نہیں کر پاتا ہے. تو انسان کمزور ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے انسان کمزور. اسی طرح جب گرمی کا سیزن آ جائے، ماشاءاللہ جب پنکھے چلتے ہیں تو ہر آدمی جب آتا ہے، مسجد میں انٹر کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے جو جگہ ملے وہ پنکھے کے نیچے ملے. اسی طرح جہاں مسجدوں میں کولر لگے ہوتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ کولر کے سامنے والی جگہ میری ہو. کیوں؟ وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی تخلیق اس طور پر ہوئی ہے کہ انسان کمزور ہے. لیکن اب لڑائی مار پیٹ جھگڑے کی بات آ جائے تو انسان طاقتور بن جاتا ہے. اتنا طاقت آ جاتی ہے کہ 2 4 6 10 کو تو جو ہے پھوڑ پھاڑ دیتے ہیں. اور وہی دو فریق جو آپس میں مرے تھے، مٹے تھے، پھوڑ پھاڑ کیے تھے، اب اس کے بعد چلے جائیں گے کچہری. 10 لاکھ 15 لاکھ 55 لاکھ روپے وہاں جا کر کے گرد کر دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا. اگر ہسٹری نکالی جائے کہ 2 فریق میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، تو کچہری کا چکر لگانے میں کرائے میں اچھا خاصا پیسہ لوگوں کا جاتا ہے. اب اس کے بعد وہاں جو دے اور کام کرائے، الغرض یہ کہ بے حساب دولت ان کی خرچ ہو جاتی ہے، تو ہر انسان طاقتور بن جاتا ہے. حدیث پاک میں نے خطبہ کے بعد پڑھی تھی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں: المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. اب اندازہ لگائیے، کیا ہماری زبان سے، کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ ہیں کہ نہیں محفوظ؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے کہ انسان وہ ہے، مکمل انسان وہ ہے کہ جس سے ہر ایک انسان محفوظ ہے. اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ تو معاشرے اور سماج کی بات ہے. گھروں کا اگر معائنہ لیا جائے، گھروں کا اگر جائزہ لیا جائے،
ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि हमारा घर भी इस चीज से महफूज नहीं, सुकून गारत हो चुके हैं। पिछले जुमा को मैंने बयान किया था, माँ बाप को, बच्चों को क्या चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करें, उनकी अजमत करें, उनकी ताजीम करें और उनके सामने जबान दराजी ना किया करें। अच्छा एक चीज है, जब निकाह होता है, जब निकाह होता है तो क्या कहा जाता है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। कितनी मर्तबा कहा जाता है? 3 मर्तबा कहा जाता है। 3 मर्तबा इंसान कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। लेकिन जब बीवी कहती है कि माँ बाप को छोड़ करके अलग हो जाओ, तो वही बेटा जिसने 3 मर्तबा कहा था कबूल है, कबूल है, अब 6 मर्तबा कहता है ठीक है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवियों के हुकूक को जो है आप तल्फ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, लेकिन माँ बाप को छोड़ करके अगर आप सुकून को तलाश करना चाह रहे हो मेरे भाई, आप सुकून नहीं पा सकते। जब माँ बाप का दिल तड़पेगा तुम्हारे लिए, जब बुढ़ापे में उन्हें जरूरत थी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी औलाद मुझे सहारा बने, अब तुम उनको छोड़ करके जा रहे हो तो उनके दिल पर क्या बीतेगा? कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता है पहले हाल। अच्छा हमारे यहाँ भी होता है, आदमी जो है अगर अल्लाह ने बेटा दी है, बेटी दी है, दोनों दिए हैं, तो आजकल के माँ बाप का, वालिदैन का लगाव जो है बेटों की तरफ ज्यादा हो जाता है, बेटियों की तरफ कम रहता है। आइए आपको इससे एक बात बताता हूँ। एक शख्स था, अल्लाह ने उसे बड़ी दौलत दी थी, बेशुमार दौलत दी थी। उसको अल्लाह ने 4 औलादें दी थी, एक बेटी थी। तो किसी तरह उसने बेटी की शादी कर दी और उसे रुखसत कर दिया। 10 साल तक उसके घर नहीं गया था, बाप बेटी के घर 10 साल तक नहीं गया था, क्योंकि शादी में जो समझी होता है उससे कोई बातचीत हो गई थी, 2-4 अल्फाज कुछ हो गए थे दोनों के बीच, तो बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया था। 10 साल तक बेटी के घर नहीं गया था और इधर चारों बेटों को बुलाया और उसके पास जितनी जमीन जायदाद, जितनी दौलत थी, सबको बराबर तकसीम कर दिया बेटों को। लेकिन कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि जब वो बिस्तर पर लेटा है, बीमार हुआ है, जब उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया है तो उसने पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी एक किडनी, एक गुर्दा खराब हो गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ, मेरा तो गुर्दा खराब हो गया है, मेरा गुर्दा खराब हो गया है, तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं दुनिया में कैसे रहूंगा। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया, जिनको बराबर उसने तकसीम, जायदाद तकसीम की थी, चारों बेटों को बुलाया और कहा कि यार मेरी औलाद, मैंने तुम्हें बचपन से पाल कर पोस करके बड़ा किया, मैं जिंदगी भर कमाता रहा और अपनी सारी कमाई, अपनी सारे धन, सारे दौलत को तुम्हारे हिस्से में तकसीम कर दिया, तुम्हें उसका वारिस बना दिया। आज मैं इस हाल पे आ गया हूँ कि मेरी किडनी खराब हो गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई मुझे किडनी दे दे। तो जानते हो बेटों ने क्या कहा था? आपकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, अभी हमने अपनी जिंदगी को नहीं देखा है, कम से कम हमें तो सुकून से जीने दीजिए। ये वो बेटे थे, तैयार नहीं हुआ, चारों बेटों में से कोई बेटा तैयार नहीं हुआ किडनी देने के लिए। अच्छा किडनी का ताल्लुक ये भी है कि हर किसी की नहीं लगती है, जिसका जो है कुछ मैचिंग भिड़ाते हैं, जिसका मैच हो जाए उसी का लगाते हैं, किसी का नहीं लगाते हैं। बहरहाल ये बात फैल गई कि फला सेठ जो बड़ा पैसे वाला था, जो बड़ा मालदार था, जिसके पास बड़ी दौलत थी, आज वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, बेटों ने किडनी देने से मना कर दिया है। जब ये खबर फैल गई तो ये खबर बेटी के पास पहुंचती है, जब बेटी के कानों में ये आवाज पहुंचती है, बेटी तड़प जाती है और फौरन डॉक्टर के यहाँ आती है और डॉक्टर से कहती है वो जो शख्स जो बीमार है, जिसकी किडनी खराब हो गई है, ले चलो मेरी किडनी निकाल लो और उसको किडनी लगा दो। उसने, डॉक्टर ने पूछा था कि तुम कौन हो बता दो, उसने कहा कि मैं उसकी रिश्तेदार हूँ। अब ये ज्यादा सवाल मत किया,
ये मत कर, बस इतना कर, मेरी किडनी निकाल करके उस आदमी के किडनी उस आदमी को लगा दे। और चुनांचे ऑपरेशन हुआ, बेटी की किडनी को निकाल करके बाप को लगाया गया। बेटी ने एक खत लिखा और खत लिखने के बाद उस डॉक्टर को दिया कि जब ये शख्स होश में आ जाएगा, पूछेगा किसने किडनी दिया है, तब ये खत निकाल करके दे देना। उसके बाद बेटी रुखसत होकर के घर आ गई। वो आदमी होश में आया, उसने लोगों से कहा कि मुझे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले चलो जिसने मुझे जिंदगी बचाई है। मैं मौत के बिस्तर पर था और करीब था कि मैं जिंदगी से हाथ धो बैठता। लोग उसे उठा करके डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर के केबिन में गया, डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर तेरा बड़ा एहसान है, तूने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो लेता। ये बता कि किडनी किसने दिया है, किडनी किसने दी है मुझे, जो मेरी किडनी खराब हो गई थी, किसने अपनी किडनी को दिया। तो डॉक्टर ने वो खत निकाला था, खत निकाल करके जब उसके हाथों में दिया था, उसने खत पढ़ा और रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने पूछा था, अरे खत पढ़ने वाले, ये बता इस खत में लिखा क्या है? तो वो बताता है, खत में लिखा था सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे मेरे बाप, तुमने मेरी शादी कर दी, 10 साल तक तुम मेरे घर नहीं आए, मुझे इस चीज का गिला नहीं है, मुझे इस चीज का एहसास नहीं है। आपने पूरी दौलत को अपने बेटों में तकसीम कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे इस बात का भी मुझे कोई गिला नहीं है, इस बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे मेरे बाप, साल में ईदें आती हैं, 10 साल में ना जाने कितने ईदी आई हैं। मैंने ऐसी ईदों को गुजारा है कि लोग ईदों पर नए कपड़े पहनते थे, मैंने किसी ईद पर नए कपड़े नहीं पहने हैं। जब ईद आती थी तो लोग चांद देखने के लिए अपने छतों पर चढ़ जाया करते थे, चांद देखने के लिए, लेकिन मैं घर से बाहर दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी कि शायद मेरा बाप आ जाए, मैं देख लूं। इसी इंतजार में मैंने 10 साल गुजारे हैं, मुझे इस बात का भी गिला नहीं है। लेकिन आए मेरे वालिद बुजुर्गवार, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा लेकर के जाया जाए और आप उसमें ना हो, तो कोई ये ना कह सके कि ये देखो किसी बदनसीब लड़की का जनाजा जा रहा है, बल्कि जब मेरा इंतकाल हो तो आप आ जाना, कंधा लगा देना, ताकि देखने वाला कहने पर मजबूर हो जाए कि देखो किसी खुशनसीब का जनाजा जा रहा है। ये बेटियां होती हैं, ये बेटियों का किरदार होता है। अल्लाह ने वो दिल बेटियों को दिया है कि ये बेटियां माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकती है। सिर्फ माँ बाप ही के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। अभी हाल ही में एक वाकया गुजरा है, एक लड़की थी जिसके हिस्से में 40 बीघे जमीन आई थी, 40 बीघे जमीन आई थी। उसने अपने हिस्से की सारी जमीन अपने भाइयों को दे दिया, लेकिन जब उस औरत का शौहर बीमार हुआ, तो जब मदद मांगने के लिए अपने भाई के पास गई है, तो भाई ने झिड़क करके घर से निकाल दिया था और कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ये आज का समाज, आज का मुआशरा बन चुका है कि जब पहले घर आ जाए तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। और कहने वाले तो यहाँ तक कह देते हैं कि बार बार घर का चक्कर मत लगाया करो, तुम्हारे आने से मेरे घर का सुकून चला जाता है। आखिर वो बेटी है, उसकी ख्वाहिश होती है कि जहां मैं पली हूं, जहां मैं बड़ी हूं, जहां मैंने अपना वक्त बिताया है, मैं भी जाकर के वहां जाऊं, मैं उस दरो दीवार को देखूं जिस दरो दीवार को मेरे बाप ने बड़ी मोहब्बतों से बनाया था। मैं उस तख्त को देखूं जिस तख्त पर मेरा बाप लेटा करता था। मैं उस घर को देखूं जिस घर में मेरे माँ बाप रहा करते थे। ये एक बहन की जो तमन्ना होती है। तो लिहाजा उम्मत मुस्लिमा के गयूर मुसलमानों, अगर माँ बाप इंतकाल कर जाए, बहन घर आए, तो चेहरा मत बिगाड़ना, बल्कि खुशी के साथ उनका इस्तकबाल करना, खुशी के साथ। बस वो तो यही चाहती है कुछ दिन के लिए आए हैं, खुशी के साथ अपना वक्त यहाँ गुजार ले और यहाँ से चले जाए। और कभी भी बापों से भी कहता हूँ, कभी भी कुछ हो जाए, अपने बेटियों से रिश्ता मत तोड़ना, उनके यहाँ से रिश्ता बनाए रखना। माना कि समधी से तुम्हारी नहीं बनती है,
कोई बात हो गई है, लेकिन वो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है जिसे तुमने पाल पोस करके बड़ा किया था। आज सब्जी के आगे, अपनी अना के आगे, अपने ईगो के आगे, अपने अनानियत के आगे अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो खुदारा इस कल्चर को, इस तहजीब को बदलने की जरूरत है। इस कल्चर, इस तहजीब को बदलने की जरूरत है। और मैं तो अक्सर बोला करता हूं कि जायदाद में जिस तरह भाइयों का हिस्सा होता है, इस तरह बहनों का भी हिस्सा होता है, समझ लो। लेकिन ये उनका एहसान है कि अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हें दे करके चली गई है। बस उसके बदले में क्या चाहती है कि जब हम सुकून से, जब कभी हमारा दिल घबराए, जब कभी हमारा दिल बेचैन हो, जब हमारा दिल बेकरार हो, तो हम अपने घर चले जाए और अपने घर को, दर दीवार को देख ले, जहां हमारा बाप रहा करता था, जहां हमारी माँ रहा करती थी, उस घर को देख ले ताकि हमें सुकून मिल जाए। यही एक बेटी की ख्वाहिश होती है। तो लिहाजा हमारे लिए जरूरी क्या है कि अगर अल्लाह ने बहन दी है तो उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, इसलिए कि जिसको अल्लाह ने बहन नहीं दी होती है ना, उससे पूछिए उसके दिल पर क्या गुजरती है। इंसान बहुत तकलीफ बर्दाश्त करता है, वो भी ख्वाहिश करता है कि काश अल्लाह ने मुझे बहन दी। इस दर्द को मैं आज भी महसूस करता हूँ। अल्लाह के करम से मुझको लेकर के मेरे 4 भाई हैं, लेकिन अल्लाह ने बहन नहीं दी है। इसका गम, इसकी तकलीफ मैं एहसास करता हूँ। क्या होता है? लिहाजा कौम के गयूरों, अगर अल्लाह ने बहन दी है तो उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। अगर वो घर आए तो खुशी से उनका इस्तकबाल कीजिए। अगर इस्तकबाल करेंगे तो यकीनन अल्लाह और रसूल बड़े खुश होंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जिस घर में बेटी की पैदाइश हो जाती है उस घर में रहमतों की बारिश होती है। अल्लाह बेपनाह रहमतों की बारिश उस घर में फरमाता। तो अगर बेटियां नाराज हो जाएं तो कैसे घर में रहमत की बारिश हो सकती है? आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह ने बेटे दिए, खुशी की बात है, उनकी तरबियत कीजिए, अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन बेटियों के हक को ना मारिए, उनको उनका हक देते रहिए। इसलिए कि हमारे कौम के नौजवान हैं, इनकी बात आ गई तो एक बात इनसे सुन लीजिए। हमारे कौम के नौजवान हैं, इन्हें कुछ आता हो या ना आता हो, इन्हें दीन से मतलब हो कि ना मतलब हो, लेकिन एक चीज से इनका बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। वो क्या है कि अगर कहीं डीजे बज रहा हो तो इनकी कमर जो है खुद ब खुद लचकने लगती है, खुद ब खुद इनकी कमर जो है लचकने लगती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाप जो है बेशर्मों के साथ खड़ा होता है और उनसे कोई पूछ ले कि इसमें तुम्हारा बेटा कौन है, तो बाप ये कहता है कि जिसकी कमर सबसे ज्यादा लचक रही है वही मेरा बेटा है। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, लेकिन ये बाप अपने बेटे को नचनिया बनाने पर तुला। ये हमारा समाज, ये हमारा मुआशरा। बाप अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को नचा रहा है, उसे शर्म नहीं आती है, गैरत मर चुकी है। उसके बाद सोचो कि आसमान से मदद हमारे लिए क्यों नहीं आ रही है? खुलेआम शरीयत के कानून का मजाक उड़ाए रहे हो। शरीयत के कानून का पासबान हमें नहीं है, हमें उसकी हिफाजत नहीं करना है। जिन जिन चीजों से अल्लाह के नबी ने हमें मना किया था, आज वो तमाम काम हम करते हुए नजर आ रहे हैं। बैठ करके क्या शराब की बोतलें हमारे नौजवान नहीं खोल रहे? यकीनन हमारे मोहल्ले में ऐसे ना जाने कितने नौजवान हैं जो आए दिन जो है बोतलें खोलते हुए नजर आते हैं, और सामने से जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार कोई है नहीं। और कोई सोचे कि इमाम साहब नहीं जानते हैं कि आपकी गलतफहमी है, कौन कितने पानी में है पूरे गांव की खबर रखता हूँ। तो खुदा रहा है मेरी कौम के नौजवानों, हालात को देख करके सुधर जाओ। क्यों अपनी कमाई को, अपनी दौलत को पीने में बर्बाद कर रहे हो? उस दौलत को बचाओ, फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, कुछ बनाने की कोशिश करो। लेकिन नहीं, एहसास मर चुका है, दिल मुर्दा हो चुका है, हमें कुछ एहसास नहीं होता है।
ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اڑا دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد کہو کہ ہم پریشان ہیں, ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں, ہماری مدد نہیں ہو رہی. پہلے 313 کا کردار تو پیدا کرو, پھر دیکھو کیسے اللہ کی مدد تمہارے اوپر آتی ہے. بشرطے کہ 313 کا کردار ہمیں پیدا کرنا پڑے گا, تب آسمان سے اللہ مدد نازل فرمائے گا, فرشتوں کی شکل میں اللہ کی مدد آئے گی. تو لہذا اپنے معاشرے کو صاف بنایا جائے, پاک بنایا جائے, شفاف بنایا جائے, ستھرا بنایا جائے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جو قانون ہمیں دے کر کے گئے ہیں, اس قانون پر ہمیں اور آپ کو سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. اور یقیناً اگر ہم کریں گے تو اللہ کی بھی پناہ رحمتوں اور برکتوں کا ہم پر نزول ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. صفحے درست کر لیں اور سنت ادا کر لیں.